Very good morning, children. Just yesterday we have to study the accounting procedures adopted in the firm when the firm is dissolved. Dissolution of partnership firm. When the partnership firm is dissolved, what's the steps and the accounting procedure or taken place? Just I would like to explain yesterday. First step, just preparing the realization account. First we have to know the meaning of realization account. Realization account. On the dissolution of the partnership firm, a new account is opened, that is called realization. It is opened to dispose all the assets and making payment of the liabilities of the firm. That is the new account that is opened, realization account. All the assets and liabilities are transferred to the realization account. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, आप ये जानते हैं कि अभी कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में दोनों में अंतर होता है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स द termination of the old agreement between the partners, and in the dissolution of partnership firm, the business is terminated with the consent of all partners or fulfill the objective of the firm or by order of court. A lot of terms and conditions are given dissolving the partnership firm. It has been explained before you. Now, accounting procedure when the firm is dissolved, just the realization account is opened to dispose all the assets and making payment of all the liabilities. By transferring the assets and liabilities in the realization account. First steps, just the journal entry for the on transferring the assets. On transferring the assets in the realization account, the first entry that is made, that is passed, realization account debit. Realization account debit to sundry assets, whatever the assets given in the questions. Just this one is the first entry that is made. Except of, suppose that in assets column you can find the deferred expenditure, just like the advertisement expenditure, and profit and loss account, whether the loss, undistributed loss
or expenses given in assets column will be transferred to the partner's capital account, whether that is given in the question. यदि बेटा प्रश्न में ये दिए गए हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? The main motto is preparing the realization account to ascertain the profit or loss on the realization account. Assets and liabilities, these are transferred to the realization account and payment made, the assets are realized, whatever the things. When the assets are realized, just the second entry, this one is the disposal of the assets in realization account, and when the realized value, कोई assets ऐसा होता है कि अब हमने आपको पहले ही बताया है कि जब फर्म टर्मिनेट हो जाती है तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद इनको वसूल करते हैं, ये बेची जाती है और बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उन सारी चीज़ों को हम पुनः एक एंट्री करते हैं कि मान लीजिए एसेट्स को बेचने से कितना पैसा मिला, तो वहाँ पर आपको एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए, इनका नाम कहीं अब नहीं आना है, डेबिट रहती है, क्रेडिट हो गई है। तो on realization, just the bank account debit or cash account debit, bank account debit to realization, मतलब जो अमाउंट प्राप्त होता है बेटा उससे हमको कितनी रकम आई, व्हाट कम्स इन डेबिट, रियलाइजेशन के माध्यम से ही सारा कुछ होता है। इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अब ये नहीं कि हमने एसेट्स बेचा तो व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट, रियलाइजेशन के ही माध्यम से, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो जा रही है, भविष्य में बिजनेस चलेगा नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स कॉलम में एक चीज और दिया रहता है, आपका बैंक या कैश का कॉलम होता है तो उसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। I think it will be clear for the sake of you. Now the second entry, transferring the liabilities in the realization account by making payment। इनका डिस्पोजल कर रहे हैं, जब हम इनको डिस्पोज कर रहे हैं तो क्या होगा, sundry liabilities account debit, sundry liabilities account debit to realization। टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रहे तमाम तरह के रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फंड दिए रहते हैं, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ होती हैं उन्हीं को हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। बाय मेकिंग पेमेंट, जैसे जनरल रिजर्व हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ, अगर जो इनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है तो इन सब चीज़ों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
जो लायबिलिटी बनेगी, यदि कोई लायबिलिटी रहती है, उसे ही हम केवल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इनका पेमेंट बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ द सन्ड्री लायबिलिटीज, देन यू कैन राइट द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बाय मेकिंग पेमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। When the payment is made for the particular liabilities, remember, ये जर्नलिटी होती है, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ट्रिक के ऊपर आप ध्यान दें, आपका कहीं गड़बड़ी नहीं होगा, बस केवल ये सोचना। अब ये तो टर्म्स और कंडीशन हो गया बेटा कि आपका डिस्पोज किए एसेट्स और लायबिलिटीज को, ट्रांसफर किए रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद उनसे कितना वसूल हुआ उस अनुसार आपने एंट्री किया। अब इसमें एक चीज और भी होता है, कभी कभी कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले लेता है। जब कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो यहाँ पर आप जब रियलाइज वैल्यू बैंक अकाउंट डेबिट के स्थान पर उस पार्टनर का नाम, मीन्स ऑन टेकिंग द एसेट्स फ्रॉम द फर्म बाय द पार्टनर्स, देन व्हाट्स द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर तो कोई पार्टनर कोई एसेट्स अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लेता है तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब जो कुछ भी होना है, मेरे कहने का मतलब, चाहे उसे आउटसाइड में बेचें या कोई पार्टनर लेता है, वो सारा कुछ रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से ही, यही चीज है इसमें। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर कहता है किसी प्रकार का लोन होता है, इसका पेमेंट हम कर देंगे, तो इसका पेमेंट जब वो पार्टनर करेगा तो आप लिखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक के स्थान पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम पार्टनर का नाम लिख देंगे। अगर तो वो डिस्चार्ज करता है लायबिलिटीज फर्म की तरफ से कोई पार्टनर, तो आप ये एंट्री पास कर देंगे। क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। Whether the partner pays the loan of the firm, तो उस स्थान पर बैंक अकाउंट के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके खाते में उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इतना ही सब कुछ है। अब कोई एक्सपेंसेज होता है, मान लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आता है, तो सीधे एक्सपेंसेज का मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक ब्रीफ नरेशन दे देते हैं, इतना एक्सपेंसेज हुआ रियलाइजेशन पर। जो इस काम को करता है, कभी कभी आगे चल के हम प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे भी। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं एसेट्स का। सपोज दैट सन्ड्री एसेट्स ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 lakhs। फर्स्ट एंट्री दैट विल बी मेड for the
realization account when the firm is dissolved and this one is being transferred to the realization account. So first entry will be realization account debit to sundry assets. Suppose that this one given is 5 lakh. 5 lakhs. And when the assets are realized, I mean to say these are sold in the market, just the realized value of assets, suppose that 4 lakhs, वो सन्ड्री एसेट्स कितने में बिक गई, मतलब उसको डिस्पोज करने के बाद 4 लाख रुपए में, तो आप सीधे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट with the realized value of the assets 4 lakhs rupees. This way you can write 4 lakhs. Bank account debit to realization. Clear? मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको क्लियर हो. अब लाइबिलिटीज दिया गया है, क्रेडिटर्स मान लीजिए 5 लाख रुपए दिए गए, 50,000 या 5 लाख का क्रेडिटर है, तो सबसे पहले इनमें तो हो जाएगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट और डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर कर चुके हैं इसे रियलाइजेशन अकाउंट में. अब इनको पेमेंट, अगर जो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 5 का 5 लाख पेमेंट देना है, और यदि इंफॉर्मेशन दिया गया है तो ये समझ लीजिए कि जितने का इंफॉर्मेशन दिया गया उतना पेमेंट करेंगे. तो आप लेकिन मान लीजिए 5 लाख की है आपका लायबिलिटी पूरा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो आप देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करते हैं, पेमेंट करना ही है. क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार सबसे पहला जो स्टेप होता है आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करना होता है. तब जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उससे इनसाइडर लायबिलिटीज फर्म का, जैसे पार्टनर की वाइफ का लोन हुआ या कुछ भी हुआ या पार्टनर्स ने लोन दिया है, उसे डिस्पोज करते हैं. उसको डिस्पोज करने के बाद भी कोई अमाउंट बच जाता है तो उसको पार्टनर्स के अकाउंट में सेटल्ड किया जाता है उनके रेशियो के अनुसार. अब यदि ये कहा गया है कि क्रेडिटर्स हमारे 5 लाख के हैं, उनको 4.5 लाख की पेमेंट करना है, 50,000 के क्रेडिटर ने वो क्लेम किए हैं, तो आप वहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4.5 लाख रुपए आपने लिख दिया. कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए इस वीडियो के माध्यम से. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर द फैक्ट एक्सप्लेन ट्रांसफरिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट एंड व्हेन दे आर रियलाइज्ड. The assets are realized with the value of the amount bank account debit to realization account that is posted in realization account, and when the discharge of the liabilities, just liabilities, first steps involving transferring the liabilities in the realization account of sundry liabilities account debit to realization account credited. And when by making the payment, when the payment is made to the discharge the liability, just the realization account debit to bank. Now the next terms, अभी तक तो मैंने कैश पेमेंट और कैश वसूली का हमने बताया. अब कोई पार्टनर्स लेना चाहता है, सपोज दैट any one of the partner is ready to get the some assets of the
firm. Then how will you treat this way? Suppose that 5 lakhs realization account में सन्ड्री एसेट्स है और ए बी सी 3 पार्टनर है। ए ने कहा भैया कि हम जो है अब इसको ये एसेट्स को 3 लाख रुपए में ले लेंगे। रियलाइज हो गया 3 लाख रुपए, तो आप लिखेंगे जब 3 लाख में ए ले रहे हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट with the amount whatever the partner is ready to get that particular assets. On the same way, when any partner is ready to pay the liabilities, to discharge the liabilities of the firm, just suppose that 50,000 creditor given in the liabilities column of the balance sheet. So when he is ready, just the entry will be realization account debit, B each one of the partner to B is capital account. This one is the example that is being given for the sake of you, my dear children. ये एग्जाम्पल है, यदि कोई पार्टनर रेडी हो जाता है कि हम ये चीज़ लेंगे, इसका पेमेंट हम करेंगे, तो वह चीज़ हम क्या करते हैं, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उतने से क्रेडिट हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। बस केवल इतना ही चीज़ ध्यान रखना है, विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल एंट्री द रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देन आफ्टर ध्यान रहे एक चीज़ मैंने बताया कि जो रिजर्व्स होते हैं, जो फंड होते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एग्जांपल, एक मंडे को क्वेश्चन के माध्यम से, अभी तो आपको ये समझना था, मंडे को क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक्सपेंसेस, कम टू द पॉइंट ऑफ एक्सपेंसेस, some expenses incurred due to the activities or taking place in dissolving of the firm, then expenses account debit to bank account, realization account debit to bank account. Not you can write the expenses account debit to bank account. You have to write all the expenses. Just when the expenses incurred, so realization account debit